with Rahman and Rahim. Welcome to Dr. Nazam's lectures. As you know very well that we have covered the histology and anatomy of the neuron. But from today, we are going to start the physiology of the neuron. So in this part, we will talk about the physiology of the dendrite. So let's start the topic. Okay. As we know very well that I have told you during the lectures of the anatomy and histology of the neuron that these structures are considered to be what? These structures are considered to be the dendrites. Okay? ये क्या structure है? ये structure है dendrites. Okay? And this structure is considered to be what? This structure is considered to be the cell body. Okay? And this structure is considered to be the axon. Can I write here axon? Okay. And these structure are considered to be what? The axonal terminal. Axon terminal or axonal terminal. Okay. These are some important parts you must have to know. That these structures are dendrite, this is cell body, this is the axon, and this is the axonal terminal. And one more thing, that is the axon hillock. It is the most important part. क्योंकि आपको पता है कि एक्सटेंट पोटेंशियल जब भी जनरेट होती है तो वो कहाँ से होती है? यहाँ से जनरेट होती है, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा जो सोडियम चैनल्स मौजूद होते हैं वो भी कहाँ पे मौजूद होते हैं? आपके एक्सॉन हिलाक या एक्सॉन बल्ब वाले पार्ट में मौजूद होते हैं। ओके, ठीक है? ये एक्सॉन हिलाक आप पॉइंट याद कर लेंगे, इसको हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल के अंदर, ठीक है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेंड्राइट। अब डेंड्राइट्स क्या करते हैं काम? आपके डेंड्राइट पाथवे फॉलो करते हैं एफरेंट पाथवे। क्या बात, कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं? एफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं। मतलब कि ये इंफॉर्मेशन लेते हैं दूसरे न्यूरॉन से और प्रोवाइड करते हैं किसको? आपकी सेल बॉडी को क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब देखिए एक सेल से ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अब दूसरे सेल को या अपनी सेल बॉडी को क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ऐसे तो इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म होगा। अब वो मैकेनिज्म को कौन सा होता है या उसकी सेल मेम्ब्रेन पे क्या चीज होती है जिसकी वजह से ये एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आ रही है दूसरे न्यूरॉन्स में जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट। Can I cut this section of cell membrane of the dendrite and put it here in a zoom section in order to show you that what is present inside the membrane of the dendrites? Okay. Let's suppose this is considered to be what? This is considered to be the membrane of the dendrites. Okay? This is considered to be what? This is considered to be the cell membrane of the dendrites. Okay. अब होता क्या है? Basically, the cell membrane of dendrites contains some special channels. What we call them? We call them the ligand gated ion channels. Okay, ligand gated ion channels. Okay, basically the cell membrane of dendrites contains some special kind of channels. What we call them? We call the ligand gated ion channels or ligand ion gated channels. Okay, and what is the important function of these channels? Basically they do very important function in EP, SPS, in IP, SPS. अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये EP, SPS क्या होते हैं और IP, SPS क्या होते हैं? So let's start topic. अब देखते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, ये क्या है? ये है आपकी मेम्ब्रेन किसकी? ये मेम्ब्रेन है आपके डेंड्राइट्स की। अब इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? चैनल्स मौजूद होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे शो करवा रहा हूँ कि these are the channels. प्रीवियसली क्या होते हैं बेटा? ये चैनल्स आपके क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? चैनल क्लोज होते हैं और स्पेशल यहाँ पे रिसेप्टर एरिया मौजूद होती है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करते हैं। ओके, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मौजूद होती है। Let's suppose this neuron is considered to be what? This neuron is considered to be the post-synaptic neuron. क्या इसको मैं छोटे फॉर्म में लिखूं ताकि आपको समझ में आ जाए? ये न्यूरॉन हमने यहाँ पे रखा है
अब ये क्या है, इसके डेंड्राइट्स हैं। अब यहाँ से अगर इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बना रहे हैं तो क्या मतलब है कि ये न्यूरॉन का जो एक्सोनल टर्मिनल है इसके डेंड्राइट्स से क्या है, कनेक्टेड है। Let's suppose this neuron is sending some kind of information. Okay, हम यहाँ पे बना देते हैं, ये है ना न्यूरॉन। अब न्यूरॉन ये मेम्ब्रेन डेंड्राइट्स की है, हम डेंड्राइट्स की यहाँ पे शो करवा रहे हैं और यहाँ पे हम एक्सोनल टर्मिनल को लिंक कर रहे हैं। ये क्या है, एक्सोनल टर्मिनल। अब ये क्या हो रहा है कि एक्सोनल टर्मिनल लेट्स सपोज सेंडिंग सम इंपॉर्टेंट मैसेज, ओके, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर है स्टिमुलेटरी। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, स्टिमुलेटरी, मींस द पल्स, ओके, स्टिमुलेटरी। ये आएगा क्या करेगा, न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा। किस चीज के लिए स्टिमुलेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब होता क्या है, जब ये स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा सीधा आगे आपकी इस रिसेप्टर एरिया पे क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब मैंने आपको बताया कि ये चैनल शुरुआत में क्या होते हैं, शुरुआत में ये चैनल होते हैं बंद। जब ये रिसेप्टर एरिया से बाइंड होगा न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, ये चैनल हो जाएगा ओपन। In this channel, when begins to open and allow some positive charge, allow some what? Allow positive charge to enter and rush into the body of the cell. ठीक है, स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आया, क्या हुआ, इस साइड से बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद क्या हुआ, ये चैनल्स खुल गए। अब क्या हो गया, सेल्स की बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव क्या है, चार्ज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, whenever the positive charge becomes increase into the body of cell, जब भी पॉजिटिव चार्ज सेल्स के अंदर बढ़ती जा रही है और नेगेटिव चार्ज का सेल्स की बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन कम हो, व्हाट वी कॉल देम, वी कॉल देम द डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। What is this? This is the depolarization. Depolarization. Sorry, spelling guilty. Okay. Depolarization. What is depolarization? When the positive charge increase, negative charge decrease into the body of cell. This is considered to be what? This is considered to be the depolarization, and this depolarization is considered to be what? Considered to be the EPS. EPS सेल्स की बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, नेगेटिव चार्ज का कम होना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आपके EPS बोल रहे हैं। ओके, और इस प्रोसेस को हम एक्शन पोटेंशियल में क्या नाम देते हैं, एक्शन पोटेंशियल में नाम देते हैं आपकी डीपोलराइजेशन का। अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज दिस न्यूरॉन यही है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, लेकिन यहाँ पे अब ये स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सेंड नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सेंड कर रहा है। लेट्स सपोज दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर किस चीज को सेंड कर रहा है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर सेंड कर रहा है इनहिबिटरी मींस के नेगेटिव। ओके, इनहिबिटरी। अब क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर सेम ही इसी तरह यहाँ पे बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद क्या होगा, ये चैनल्स खुल जाएंगे, खुल जाएंगे तो क्या होगा, इनहिबिटरी है, मतलब कि सेल्स की बॉडी के अंदर क्या होगा, नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जब ये ओपन होगा तो क्या होगा, सेल्स की बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज आती रहेंगी। Whenever the negative charge is increased into the body of cell and positive charge is decreased into the body of cell, what will happen? We call this the hyperpolarization. What we call them? Hyperpolarization. Okay, hyperpolarization में क्या होता है, आपकी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाती है, आपकी पॉजिटिव चार्ज कम हो जाती है सेल्स की बॉडी के अंदर, और इसी को हम नाम देते हैं आपकी IPSPS। समझ में आ गई बात आपको? न्यूरोट्रांसमीटर सेंड हो रहा है, आइदर न्यूरोट्रांसमीटर मे बी द स्टिमुलेटरी, मे बी द इनहिबिटरी, उससे क्या होगा, सेल्स के अंदर या तो डीपोलराइजेशन काज होगी या तो हाइपरपोलराइजेशन काज होगी। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं,
ईपीएसपीज। जब पॉजिटिव चार्ज सेल्स के अंदर ज्यादा हो तो उसको हम नाम देते हैं ईपीएसपीज का। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेल्स की बॉडी के अंदर ज्यादा हो तो उसको हम नाम देते हैं आईपीएसपीज का। अब इन दोनों को मींस के ईपीएसपीज एंड आईपीएसपीज दोनों को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडेड पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं? ग्रेडेड पोटेंशियल। बात हो गई क्लियर? ठीक है। अब देखें, ये जो आपके आयन चैनल हैं, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल कौन सा काम कर रहे हैं? ईपीएसपीज का काम कर रहे हैं, मतलब डीपोलराइजेशन काज करवा रहे हैं या हाइपरपोलराइजेशन काज करवा रहे हैं। यहाँ क्लियर हो गई बात? अब इन दोनों चैनल्स के अलावा भी एक न्यूरॉन की बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीपीसीआर। ठीक है। लेट्स सपोज हमने फिर से यहां से क्या हुआ? मेम्ब्रेन उठाई। किस चीज की मेम्ब्रेन उठाई बेटा? हमने मेम्ब्रेन उठाई आपके डेंड्राइट्स की। ओके। सेम ही इस तरह यहाँ पे क्या होगा? एक चैनल टाइप मौजूद होगा, लेकिन ये चैनल थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है। इस तरह से अगर मैं आपको डिफरेंट बनाने के हिसाब से समझाऊं, यहाँ पे सेम रिसेप्टर एरिया मौजूद होती है और यहाँ से कनेक्ट आपकी हैं एक रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज क्या हुआ? यहाँ से आइदर स्टिमुलेशन आया। अब स्टिमुलेशन कौन सा हुआ? आपका स्टिमुलेटरी हो सकता है, आपका इनहिबिटरी स्टिमुलेट हो सकता है। अब क्या हुआ? यहाँ से अगर कोई स्टिमुलस आया तो यहाँ पे क्या होगा? जी प्रोटीन बिकम एक्टिव। ओके। अब जी प्रोटीन क्या है? ये है आपका सेकेंडरी मैसेंजर। जब प्रोटीन क्या हो गई? एक्टिव हो गई। और जी प्रोटीन क्या है आपकी जी प्रोटीन है सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये जी प्रोटीन क्या करती हैं? आपको एक्टिवेट करती हैं प्रोटीन काइनेज को। एक्टिवेट्स दी प्रोटीन काइनेज। ओके। देखिए, जब जी प्रोटीन एक्टिव होगी, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर कनेक्ट होगा, जी प्रोटीन एक्टिव होगी। जी प्रोटीन खुद क्या है? इट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है। या सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए आप इसको बोल सकते हैं। वो जाके किस चीज को एक्टिव करती है? आपकी प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करती है। अब प्रोटीन काइनेज क्या होती है? ये होती है एंजाइम। अब इस एंजाइम का क्या काम होता है? फास्फोरिलेट। ठीक है। फास्फोरिलेशन करना। अब किस चीज की फास्फोरिलेशन करना? मेम्ब्रेन की फास्फोरिलेशन करना, मतलब कि मेम्ब्रेन्स को तोड़ना, यहाँ पे मेम्ब्रेन्स के अंदर चैनल बनाना। अब क्या होगा? इस मेम्ब्रेन्स की प्रोटीन को ये क्या करेगी? फास्फोरिलेट करेगी। अब फास्फोरिलेट करेगी तो क्या होगा? आइदर पॉजिटिव चार्ज एंटर्स होंगे बॉडी में, सेल्स की बॉडी में, या नेगेटिव चार्ज बॉडी के सेल्स की बॉडी में क्या होंगे? इंटर होंगे। अगर सेल्स की बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो उसको हम नाम क्या देते हैं? ईपीएसपीज का। अगर सेल्स की बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आईपीएसपीज का। इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या करते हैं? ग्रेडेड पोटेंशियल बोलते हैं। और ये है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ओके। अब ये देखिए, ये सारे सेल्स रिसेप्टर्स या आयन चैनल्स हम बोले इनको। ठीक है। आयन चैनल्स पाए जाते हैं आपकी इस सेल की ये जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट्स की जो मेम्ब्रेन होती है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट बोल सकते हैं, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा भी क्या पाए जाते हैं? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? सेम भी इसी तरह यहाँ पे बाइंड होता है। क्या होता है? यहाँ पे सब क्या हो रहा है कि जी प्रोटीन एक्टिव हो रही है। एक्टिव होने के बाद जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या कर रही है? ये कि सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर किस चीज को एक्टिव करवा रही है? आपकी प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करा रही है। अब प्रोटीन काइनेज का काम क्या होता है? फास्फोरिलेट करना। किस चीज की फास्फोरिलेट करना? मेम्ब्रेन्स की प्रोटीन की फास्फोरिलेट करना। अब मेम्ब्रेन को जब ये तोड़ेगी, काइनेज का मतलब क्या होगा? तोड़ना। अब इसको तोड़ेगी, या तो क्या करेगी? पॉजिटिव चार्ज को रश करवाएगी सेल्स की बॉडी के अंदर, या तो नेगेटिव चार्ज को रश करवाएगी सेल्स की बॉडी के अंदर। अगर सेल्स की बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रही है तो क्या होगा? उसको हम बोलेंगे ईपीएसपी। अगर सेल्स की बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्जेस आ रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? आईपीएसपी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द डेंड्राइट्स। थैंक यू।